Namaste, Namaste students and dear friends. Today I am going to explain about the same competitive exams preparation of LibreOffice Writer. And last time we studied about these three topics, especially about introduction of uh, LibreOffice Writer and some basic knowledge I have given. Just I want to repeat that rapidly. First, we have discussed that it is open source word processing software and it is developed by the Document Foundation. And one another important questions we can it may have from this previous video, that is default extension name is .odt and LibreOffice Suite having Writer, Calc, Impress, Draw, Base, Math. These all are the included into LibreOffice Suite. And if you have open new document in LibreOffice Writer, then by default name will be untitled. In second slides we have discussed that there are number of toolbars and bars are there. One of them is title bar, menu bar, standard toolbar and formatting bar. Standard toolbar having number of these buttons or options like new, save, print, PDF expert, insert table, image, chart, text box and so many others. Formatting toolbars, font type, font size, bold, italic, underline, superscript, subscript, alignment, left, right, center, justify. These all are there. Here in some shortcuts keys are there, where some importance are we can consider that as very important, that find and replace Control H, redo Control Y, undo Control Z, go to particular page number that is known as Control G. Okay, like this one more important, which is here view menu having normal, web page and full screen, and for full screen shortcut key is Control Shift and J. And then there is one more thing is there, that is about insert menu, where you can insert this picture and this table. These all are available into this one. And after that one important question we can say that sometime it is asked into exam, that is style menu, style dialog box we can open with the help of F11. Okay, and last slides we did, that is font size. Many times this question came in the examination, competitive exam, especially CCC certification or LibreOffice Writer, and that font size, minimum font size is 2 and maximum it may be up to 999.99 when we are using custom or manual font. If we are taking drop down menu, then minimum size is 6 and maximum is 96, sorry, and by default font size is 12. Font name, whatever it is we are using, that is Liberation Serif, and some important command here also. Just Control D for underline, and for increase font it is Control and the square bracket closing, and for decrease font Control and square bracket opening. Superscript, for that we are using Control Shift and P, and subscript we are using Control Shift and P. Now we are coming on this one another thing and new points, that is images. If you want to insert image, then there are 2-3 ways are there. First way, you can click on insert and then image. One option is available directly on standard toolbar, as I told you, standard toolbar this. Okay, and one another method is there, you can drag image and drop into this one, that document, and one another and last one is that you can copy image and paste into this one. So there are several these options are there, where
you can use for insert image in LibreOffice Writer. Now whenever if you will insert any kind of picture, then LibreOffice Writer will have some points to increase or decrease size of this picture, and you can do this picture either it is increase or decrease size as per your requirement. So it was resizing we can do with the help of these points are there, which is given into every pictures. Okay, so you have to as well as you can drag picture for the position change, whatever you need you can change. Okay, so some these points available, and whenever you want to just moving picture, then just you have to go at that place and select your mouse button, and then you can drag whatever the position you want to take it. Okay, so handles at these all corners we have as it is written into this point, and then just if you want to set this some property, then it is very important for the exam point of view, especially in CBSE board class 10th. Some important points are there that if you want to these many tabs are there in image dialog box. तो ये सब याद रखना है, यहाँ पे इमेज डायलॉग बॉक्स में कौन कौन से टैब हैं, ये सब टैब है। मैं एक एक टैब पे क्लिक कर रहा हूँ, और इस टैब में इन वेरी फर्स्ट टैब इट इज़ पोजीशन एंड साइज। तो आप पोजीशन किस पोजीशन पे रखना है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि एंकर्स दिए हुए हैं, दिस पेज एंकर, पैराग्राफ एंकर, कैरेक्टर एंकर। तो अभी इसकी पोजीशन कैरेक्टर एंकर की तरह है। इफ़ आई वांट टू चेंज इट विल बिकम दैट पेज एंकर। ओके, तो ये पेज एंकर आ गए यहाँ पे, एंड लाइक दैट यू कैन सेट नंबर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दिस पिक्चर्स। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन कौन से प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में पोजीशन एंड साइज इज़ वन टैब, देन ऑप्शनल options is second tab, where in options tab you can give the name of this picture, as well as suppose picture is not available for any reason, then you can give this text, alternative text, whatever it will display। ये रैपिंग के बारे में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ये है वो चारों तरफ जो टेक्स्ट है वो आपको दिखाई देगा और बीच में पिक्चर दिखाई देगी, जैसा कि आपके सामने अभी ये अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में आपको जब थ्रू आउट कर दिया तो ये क्या करेगा कि उसको पिक्चर को बैकग्राउंड में पिक्चर को फ्रंट ले आएगा और बैकग्राउंड में आपका टेक्स्ट एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा, जो कि ठीक नहीं है क्योंकि वो पिक्चर के नीचे कंटेंट छुप जाता है, तो दैट विल बी द यूजलेस कंटेंट। ओके, सो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। एक और है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइपरलिंक। सपोज मैंने यहाँ पे एक कोई सेलेक्ट कर दिया, कोई अपना ने कोई लिंक ले लिया और उसको यहाँ पे सेट कर दिया। थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया, अपना एक लिंक ले लिया यहाँ पे इस तरह से, और इसको मैंने डायरेक्टली मुझे इसको खोलना है। ठीक है, तो ये मैंने लिंक को यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद सपोज आई वांट टू डू दिस थिंग, देन व्हाट आई विल डू, आई विल पेस्ट दैट लिंक हियर। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्यूटोरियल वीडियो। ओके, एंड देन we can do this video, tutorial video. Okay, and then we have written something more message about this one, and then okay. Now what happened, this will become like hyperlink। मतलब hyperlink की जगह ये picture hyperlink का काम करेगा। Just we have to click कंट्रोल की प्रेस एंड देन ये डायरेक्टली वहाँ पे चला जाएगा जो हमने लिंक दिया हुआ है। तो एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा गया है, और हमारे दूसरे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हाइपर लिंक क्या हम पिक्चर को कर सकते हैं। तो द आंसर विल बी करेक्ट, यस वी कैन डू। यहाँ पे पिक्चर को रोटेट करने का है। ठीक है, फ्लिप मीन्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिप कर सकते हैं, आप किसी एंगल के अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं, तो ये भी इसके अंदर है।
crop, जैसा कि common features है, whenever we are working on any kind of image, then this is the common feature where we can cut or we can remove whatever the thing you do not want, means unwanted part of the picture you can delete with the help of this crop. तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को बॉर्डर करना हो तो बॉर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो ये है कि एंकर्स के बारे में, एंकर्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है, और दूसरा के पिक्चर को रिसाइज करने का, ठीक है, उसके बैकग्राउंड में आपको जो रैपिंग के बारे में मैंने बताया था उसका। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट हैं और पूछे जा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ नोन एज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक करने के लिए अपने को ऑप्शन है यहाँ पे इंसर्ट एंड देन हाइपरलिंक। अभी यहाँ पे क्लास 10th के बच्चों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनका CBSE में 402 सब्जेक्ट कोड है और उन्होंने ये IT जो सब्जेक्ट वो लिया हुआ है, तो उसमें लिब्रे ऑफिस राइटर जो है उसके बारे में पूछा गया। तो उसमें हाइपरलिंक में 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो इंटरनेट को लिंक करने का, एक मेल है, एक डॉक्यूमेंट है और एक न्यू डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे भी आप URL सेट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, और यहाँ पे URL के बारे में आपने लिख दिया दिस इज़ माय टेस्टिंग, जो भी लिखना है तो ये लिख दिया। उसके बाद दिस इज़ माय टेस्टिंग, और वो लिखने के बाद इसको ओके कर दो तो आपका यहाँ पे आ गया। ये भी एक प्रकार से लिंक है। तो व्हेनेवर यू वांट टू जस्ट कनेक्ट वॉट एवर द लिंक इज देयर, सपोज यू वांट टू गो एट दैट प्लेस, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल कंट्रोल एंड क्लिक ऑन दैट वन। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, जो लिंक था आपका वहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो वीडियो आपके सामने जो मटेरियल है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये था एक आपका हाइपरलिंक के बारे में जो कि मैंने आपको बताया। तो हाइपरलिंक है वो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, तो एक तो वेबसाइट है, कि ईमेल है, एड्रेस है और न्यू डॉक्यूमेंट है या स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए शॉर्ट मेथड कौन कौन सा है, तो एक मेथड है इंसर्ट एंड देन हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक को करना हो तो इंसर्ट मेनू से कर सकते हैं। और एक आपका जो कंट्रोल के करके देखते हैं, कंट्रोल के, तो कंट्रोल के से भी हाइपरलिंक का ऑप्शन आपके सामने खुल जाता है। तो ये दोनों मेथड है, आपको जो भी सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे ये जो पूछा जा सकता है कि डायलॉग बॉक्स के अंदर कौन कौन से टाइप के लिंक ये ऑफर करता है, तो देन इट इज़ इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट एंड न्यू डॉक्यूमेंट, ये है। उसमें टारगेट फाइल और उसके बारे में भी आप टेक्स्ट दे सकते हैं। और जैसे भी किसी भी हाइपरलिंक टेक्स्ट को अपने को रन करना है या इम्प्लीमेंट करना है तो कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना होता है। और फिर एक और है कि हाइपरलिंक को मॉडिफाई किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, एज वेल एज रिमूव किया जा सकता है। तो एडिट और रिमूव के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कंट्रोल के किया और सेम मान लो मैंने कर दिया, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट के बारे में दिया तो उसका पाथ दे दिया और उसको मैंने यहाँ पे उसको रन कर लिया। तो मैं यहाँ पे जो पहले था उसी को मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन लिख दी और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे मैं जैसे ही जाऊँगा ये मेरे को ऑप्शन दे रहा है कि आपको इसको कंटिन्यू करना है क्या। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। पर बिना कंट्रोल की के यदि मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस आते हैं कि क्या आपको हाइपरलिंक को एडिट करना है, क्या हाइपरलिंक को रिमूव करना है, क्या हाइपरलिंक को ओपन करना है। तो इनमें से जो भी आपको चाहिए, ठीक है, या हाइपरलिंक को किसी और लोकेशन पे कॉपी करना है
आपको जो भी चाहिए वो आप कर सकते हैं। मान लो मॉडिफाई करना है तो आप इसको ये एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको मॉडिफिकेशन का मौका देगा, ठीक है। और यदि आपको उसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके और रिमूव कर देंगे तो ये हाइपरलिंक आपका डिलीट हो जाएगा। अब ये हाइपरलिंक नहीं रहा, अब सिंपल टेक्स्ट रह गया ये, तो और उसको फिर आपको यहाँ से डिलीट कर देना पड़ेगा। तो इस तरह से हाइपरलिंक को आप डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट बुकमार्क। बुकमार्क ये भी आपका ऑप्शन है इंसर्ट के अंदर, ठीक है। जैसे कि उसका तो शॉर्टकट की मैंने बताया था आपको, वो हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल की। यहाँ पे बुकमार्क है। बुकमार्क एक्चुअल में हमको किसी पर्टिकुलर लोकेशन को एक टैग करके रखना है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव होना हो तो हम बुकमार्क को यूज़ करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो मैं यहाँ पे एक बुकमार्क कर देता हूँ, तो इंसर्ट एंड देन बुकमार्क। सपोज अभी यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है बुकमार्क के अंदर, क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने राइटर और जिनके सिलेबस में है, बुकमार्क में रीनेम, एडिट टेक्स्ट, डिलीट एंड गो टू, ये 4 पॉइंट आपके पास अवेलेबल है। तो जैसे मैंने इंसर्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे एक बुकमार्क बन गया। अब मैं मान लो कि एक दूसरा बुकमार्क करता हूँ, वो यहाँ पे करता हूँ, परंतु यहाँ पे मैंने दे दिया, मेरी तरफ से कोई टेक्स्ट दे दिया, माई बुक मार्क, ठीक है। और फिर मैं इसको सेलेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंसर्ट एंड देन बुक मार्क, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यस इंसर्ट। अब क्या करना है कि मेरे को पुराने टेक्स्ट पे जाना है, बुक मार्क को यूज़ करना है, तो इंसर्ट बुक मार्क, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको 4 ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था, ये टेक्स्ट लिखा था, इसलिए वो जो टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पे आ गया। इनमें से सपोज आई वांट टू गो एट दिस प्रीवियस वन, देन आई विल गो टू, देन डायरेक्टली इट विल मूव एट। यहाँ पे कुछ मैंने टेक्स्ट नहीं लिखा था इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, यदि टेक्स्ट लिखा होता तो वो टेक्स्ट डिस्प्ले करता। सपोज आई वांट टू गो बैक टू दिस सेकेंड वन, देन आई कैन गो डायरेक्टली ऑन दिस। तो उसमें एडिट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये सब ऑप्शंस इसमें है। तो इस तरह से हमने आज देखा 3 चीज़ें, जिसमें था एक तो इमेज इंसर्ट करना, एक था हाइपरलिंक और तीसरा था बुकमार्क। आई होप इट विल गिव यू सपोर्ट to give a competitive exam easily, and next video I will tell you something more about the next option and next table insert or something more. Okay, till that, take care of yourself, and thank you very much to everyone.